औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व सल्लि सय्यिदिना मुहम्मदिन फ़िरवति कुल्लि ज़र्रतिन व तबारक व सल्लम अलैहि। Assalamu alaikum, third year. Now we have discussed in the previous lecture after absorption. Now after absorption here we will now go through other aspect of pharmacokinetic, and the next one is distribution. Now as far as distribution is concerned, we know after absorption the movement of the drug molecule to various body compartments by permeating various body membrane is the distribution. When drugs are absorbed, they enter into the vascular compartment. This is the first distribution. First distribution is in the blood. So drug molecule will enter the blood. They may be present in the form of free drug or bound with the plasma protein. In the absence equilibrium, there is an equilibrium. Now this equilibrium obviously will vary from drug to drug. It may be 1 into 99, 10 into 90, 50-50, etc., etc. So depending upon the nature of the drug molecule, every drug has its own equilibrium with the plasma protein binding. When it is first going into the circulation, the immediate thing what happens is that the drug will bind with the plasma protein and will be present as an equilibrium. Kuch percentage free में होगी, other will be in the bounded form. Now here, only the free will go to the sites for distribution. Plasma protein binded form cannot leave the vascular. वो distribute नहीं होती, कभी नहीं होगी. वो क्यों? Large size molecule. We know from our knowledge of physiology कि plasma protein itself cannot leave the vascular compartment. इतने बड़े size होता है. जब molecule में मिल गया तो और बड़ा size हो गया. So only drug free molecule, provided जो characteristic पीछे देखी, ये lipid soluble है, unionized है, smaller size molecule है, जिस organ में जा रहा है, vascularity कैसी है, surface area कैसा है, affinity उसके जाने के लिए चाहत कैसी है, उसको ठीक है. So it will go into the other body tissue. Usually जिसे हम कहते हैं sites of required action, वो pharmaceutical effects के लिए, वो just storage के लिए वगैरह कोई भी काम हो सकता है. Site of required action और साइट हो सकती है अनरिक्वायर्ड एक्शन और फॉर स्टोरेज. ठीक है, ये तो वो है जो हम चाहते हैं. फॉर एग्जांपल ब्रोंकियल अस्थमा में वी आर यूजिंग इफ सम ड्रग यूज फॉर ब्रोंकियल अस्थमा, आवर साइट विल बी मेनली लंग्स एंड ब्रोंकाई. लेकिन अगर वो बाकी टिश्यू में भी जा रही है, हार्ट में जा रही है और स्केलेटल मसल में जा रही है एक्सेट्रा, वो अनरिक्वायर्ड एक्शन है. प्रोड्यूस हो रही हैं, रोक नहीं सकते हम. यस, सिमिलरली देयर आर सो मेनी ड्रग्स, they will get storage into the various body compartments, fatty tissue में, skeletal muscle में और जगह पे, बोन में. तो ये तमाम जगह साइट ऑफ एक्शन भी हो सकती है, स्टोरेज भी. किन के लिए स्टोरेज, किन के लिए साइट, अगेन जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल स्ट्रक्चर. खैर नहीं हो. फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द वास्कुलर कंपार्टमेंट, सेकंड टू द रिक्वायर्ड साइट ऑफ एक्शन, थर्ड अनरिक्वायर्ड साइट ऑफ एक्शन और स्टोरेज, एंड देन फोर्थ वन टू द साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म. Obviously the major site of metabolism is the liver. बाकी भी साइट जैसे मैं बार बार कर रहा हूँ, फिर डिस्कस करेंगे. मैं विल डिस्कस मेटाबॉलिज्म itself, and the fifth one is the site of excretion. Here again the main site is kidney. तो all these distribution occur. और ये देखिए ये two way है कि these are reversible, all are. अच्छा ये भी reversible है. अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा. जैसे मैंने कहा, ओनली फ्री ड्रग मॉलिक्यूल विल मूव टू दी वेरियस साइट्स. ठीक है. सो ऑब्वियसली व्हेन दिस फ्री ड्रग मॉलिक्यूल हैव मूव्ड फ्रॉम द सर्कुलेशन टू द साइट, द परसेंटेज और द फ्रैक्शन ऑफ फ्री विल रिड्यूस, मॉलिक्यूल विल रिड्यूस. तो ये जो इक्विलिब्रियम था ये डिस्टर्ब हो गया. अब क्या होगा? फ्रॉम बाउंड साइड ड्रग मॉलिक्यूल विल गो टू द फ्री साइड. एक नया इक्विलिब्रियम डेवलप होगा. रेशियो याद रखें हमेशा वही रहेगी. टोटल क्वांटिटी जाहिर कम हो जाएगी, वो तो चलेगी ना. बाकी क्वांटिटी मॉलिक्यूल गए ना तो टोटल क्वांटिटी कम होगी, लेकिन इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा. ठीक है. फ्रॉम बाउंडेड फॉर्म इट विल गो इनटू द फ्री फॉर्म अगेन.
जैसे मैंने कहा, अगर किसी की रेशो 1:99 है, ऑलवेज ये 1:99 रहेगी। क्वांटिटी टोटल आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। अगर 10:90 है तो अगेन दोबारा ये 10% हो जाएगी, 90% हो जाएगी, टोटल क्वांटिटी में रिड्यूस, ठीक है। साइड पे जाके मेटाबॉलिज्म होके निकल के, एक्सक्रीट होके निकल के, तमाम से क्वांटिटी आहिस्ता से कम हो नहीं, यानी इट्स कंटिन्यूस प्रोसेस, ये नहीं होता। ना ही एब्जॉर्प्शन एकदम होती है, ना ही मेटाबॉलिज्म इकट्ठा, ना इसके कुछ। हाँ, सिर्फ ये है ग्रेजुअली ड्रग्स मॉलिक्यूल्स विच आर गेटिंग एब्जॉर्ब्ड आर कमिंग इनटू द सर्कुलेशन, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तमाम जगहों में, साथ साथ हो जा रहे हैं, हत्ता कि एकदम रैपिड होके एक रिक्वायर्ड लेवल मिल जाते हैं, अलबत्ता मैक्सिमम पीक लेवल मिल जाते हैं, ठीक है। थोड़े से आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा, फिर पीक, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम, ठीक है। वो कम क्यों हो रहे हैं? थ्रू मेटाबॉलिज्म एंड थ्रू एक्सक्रीशन। अब हमने कहा कि ड्रग्स टेकन ओरली, अब पहले सिर्फ ओरल रूट को देख लेते हैं। थ्रू माउथ they enter the systemic portal circulation after crossing the intestinal membrane, then pass through the liver, then enter to system circulation और ultimately to the site of action। ये अभी तक हमने ये पढ़ा, और ये भी देखा कि लिवर इज द मेजर साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, यानी ब्रेक डाउन होना मेन, या इवन बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये लफ्ज़ एक नया होगा आपके लिए, इन फार्माकोलॉजी पर, फिजियोलॉजी शायद लफ्ज़ इस्तेमाल ना हुआ हो, लेकिन भारत bio transformation into the biological sites, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। कैसे? जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग जब पहुंची थी, चेंजिंग इनटू मोर वाटर सॉल्युबल, सॉरी, जो लिपिड सॉल्युबल थी वो नॉन पोलराइज से अनआयनाइज थी। अब लिवर ने उसको पोलर भी कर दिया, आयनाइज कर दिया वाटर सॉल्युबल। तो ये दो तब्दीलियां आती हैं लिवर में, एक मेटाबॉलिज्म यानी ब्रेकडाउन होना, और दूसरी उसकी बार ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए लिपिड सॉल्युबिलिटी उसकी करना। नाउ वी नो ड्रग मेटाबॉलिज्म एक्चुअली a chemical or the enzymatic reaction occurring in the metabolic side, especially the liver, और जिनकी वजह से the drug molecule is changed its molecular structure। ये मेटाबॉलिक रिएक्शन दो केमिकल रिएक्शन दो किस्म के होते हैं, वो नो कैटाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक इन विच ब्रेक डाउन ऑफ द मॉलिक्यूल इज अकर, ड्रग मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होती है, उनके मेटाबोलाइट्स बन जाते हैं, ठीक है। और ये रखे हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, इनके बारे में आपको पता है कि व्हाट दे मीन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, और ये ब्रेक डाउन करते हैं टू मेटाबोलाइट्स। दूसरे रिएक्शन होते हैं एनाबॉलिक, सिंथेटिक, ये थ्रू कंजुगेशन हो रही है ड्रग मॉलिक्यूल इटसेल्फ के साथ या इवन इसके मेटाबोलाइट्स के साथ, दोनों के साथ, फिर कंजुगेशन रिएक्शन हो जाते हैं, सिंथेटिक रिएक्शन हो जाते हैं, और एक नया मॉलिक्यूल बन जाता है। रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, व्हाट हैपन आफ्टर मेटाबॉलिज्म? यूजुअली टू टाइप्स ऑफ चेंजेस अकर। फर्स्ट इज चेंज इन एक्टिविटी। अब यहाँ पे एक हमेशा कंसेप्ट बना लीजिए, मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग we have up till now, after metabolism their metabolites become inactive। हमने बात की थी ड्रग होती ही एक्टिव है, अब जो प्रो ड्रग है वो थोड़ी सी होती हैं, वो पहले एक्टिव होगी, फिर वो भी इनएक्टिव होगी, जिस तरह भी है वो निकल जाएंगी बाहर, लेकिन मेजॉरिटी ड्रग्स होती ही एक्टिव है। सो मेजॉरिटी ऑफ देम आफ्टर मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीडेशन से, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस से, दे बिकम इनएक्टिव। जब वो इनएक्टिव होते हैं, हमने पीछे भी पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, हम उनको कहते हैं एलिमिनेशन, उनको एलिमिनेटेड, सो दे गॉट एलिमिनेटेड। सो आफ्टर मेटाबॉलिज्म थ्रू केमिकल रिएक्शन व्हेन दे बिकम इनएक्टिव, दे बिकम एलिमिनेटेड। लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल रह जाते हैं, इवन आफ्टर मेटाबॉलिज्म दे स्टिल डू नॉट बिकम इनएक्टिव, दे रिटेन देयर एक्टिविटी। तो हमने कहा मेटाबॉलिज्म हो गया, रिएक्शन हो गया, लेकिन इनएक्टिव नहीं हो, एलिमिनेट नहीं हुए, ठीक है, दे स्टिल रिटेन सम एक्टिविटी। वो कैसी होगी? इट में बी सेम एक्टिविटी एज ऑफ द पेरेंट मॉलिक्यूल, एज आई हैव बीन टेलिंग यू बिफोर ऑल, और सम डिफरेंट एक्टिविटी आल्सो। अब एलिमिनेशन को अगर डिफाइन करेंगे, सो इट्स अ केमिकल चेंज इन द ड्रग मॉलिक्यूल टू मेक इट इनएक्टिव फॉर द बॉडी।
इट कैन बी अचीव्ड आइदर थ्रू मेटाबॉलिज्म, जैसे मैंने कहा मेजॉरिटी में हो जाता है, लेकिन कुछ परसेंटेज जो मेटाबॉलिज्म के बाद जो एलिमिनेट नहीं हुए, व्हेन दे विल बी एक्सक्रीटेड, नो मोर अवेलेबल फॉर द बॉडी फॉर एक्टिविटी, हमने कहा थ्रू एक्सक्रीशन भी एलिमिनेशन कर दी। ये रिपीट मैं पहले भी कर चुका, आपको पहले भी बता, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। कुछ एग्जाम्पल ऑफ सेम एक्टिविटी ड्रग मॉलिक्यूल एक्टिव, मैं इनमें से कुछ नाम आपने सुने होंगे, कुछ नहीं सुने होंगे, चले जो सुने उनकी बात कर लेते हैं। मॉर्फिन, मॉर्फिन 6 ग्लूक्रोनाइड, इसकी एक्टिविटी भी मॉर्फिन जैसी थी है। व्हाट इज एक्टिविटी ऑफ मॉर्फिन मीन? एनर्जेटिक, स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक, इसकी भी एनर्जेटिक एक्टिविटी मेंटेन रहती है। एलोप्रिनॉल, आपने पढ़ा होगा, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, यूरिक एजेंट होता है, तो इसके एक्टिव मेटाबॉलिज्म एजेंथीन में वो भी उसी तरह रिटेन रख रहा है यूरिक एजेंट, ठीक है। ये बाकी भी एग्जांपल है, नाम आहिस्ता पर क्लोरोहाइड्रेट है, सेफेटॉक्साइम है, ठीक है, ये भी ब्रेन को सेडेट और वगैरह करता है। सेफेटॉक्साइम ये एंटीबैक्टीरियल वगैरह है। प्रोकेनामाइड, ठीक है, ये जब आप पढ़ेंगे एंटी एरिथमिक ड्रग उनमें आएगा। प्रीमिडॉन, ये नाम से इजारों का फिनोबार्बिटोन, ये बार्बिचरेट है, बेसिकली कॉम्बिनेशन है, दो में कन्वर्ट होता है, फिनोबार्बिटोन एंड फिनाइल इथाइल मेलानामाइड। इन तमाम की एक्टिविटी अपने अपने पेरेंट ड्रग मॉलिक्यूल से मिलती है, वैसी ही है। और एग्जांपल डायजेपम, जब बेंजोडाइज़ेपिन ग्रुप आप पढ़ेंगे, बार्बिचरेट के साथ ही साइड हिप्नोटिक्स होती हैं, सीडेट भी करती हैं, हिप्नोसिस भी पैदा करती हैं। डाइसमेथाइल डायजेपम, मेरोक्साजेपम। हाँ, डिजिटॉक्सिन बता, आपने ये नाम पढ़ा था फिर ऑलरेडी। एक एक्टिव मेटाबोलाइट डाइजॉक्सिन है और इसकी एक्टिविटी वही है जो इसकी डिजिटॉक्सिन की। एमिप्रामीन, ये एंटी डिप्रेसेंट में पढ़ेंगे, इसका एक्टिव मेटाबोलाइट एमिप्रामीन, उसकी भी वही एक्टिविटी एंटी डिप्रेसेंट है। एमिट्रिप्टाइलिन भी यही खानदान है, एंटी डिप्रेसेंट, नॉरट्रिप्टाइलिन में कन्वर्ट होती है, उसका भी एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट है। कोडीन बेसिकली इट्स एन ओपियाइड, ठीक है, तो कन्वर्ट होती है मॉर्फिन, मॉर्फिन पीछे तक हमने अंग्रेज, इसका भी एनर्जी इफेक्ट, इसका भी एनर्जी, और भी इफेक्ट्स होते हैं, वो हम जब पढ़ेंगे ओपियाइड्स का पता लगेगा एनर्जेटिक के अलावा और कौन कौन से इफेक्ट्स हैं। कुछ तो आपको पता होगा फ्रॉम द कॉमन सेंस, जो आपने लिटरेचर से ज़्यादा पढ़ा होगा। ओपियाइड अब्यूज भी होते हैं, ठीक है ना, एडिक्शन वगैरह भी हो जाती है, तो इससे भी होगी, उससे भी होगी एडिक्शन। खैर, स्पाइरोलेक्टोन, ये डायरेटिक्स में पढ़ेंगे आप, ठीक है, तो कैनरिनॉन, सेम एक्टिविटी डायरेसिस वगैरह जैसे उनकी है, पोटाशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स होती है। Now, here we will see the toxic metabolite. They don't have the similar activity as the parent molecules were having. They are having different, and not only different, at the same time they are producing some severe toxic effects also. For example, here the drug is isoniazid. This is actually anti-tubercular drug useful against the disease of tuberculosis. But its active metabolites, monoacetyl hydrazine, is hepatotoxic. No activity against the tuberculosis, no, only hepatotoxic. So that is why isoniazid can show one of its side effect, a toxic effect, hepatotoxicity, and the reason is due to its synthesis of toxic metabolite monoacetyl hydrazine. Next example is morphine. Now in this we have seen, as far as the morphine 6-glucuronide was concerned, that was having the same energetic activity as the morphine itself was having. But this one, morphine 3-glucuronide, it is neurotoxic. So अगर morphine से कोई neurotoxicity होगी, that will be due to this morphine 3-glucuronide. Similarly, cyclophosphamide is one of the anti-cancer drug, but its active metabolite acrolein, इसका कोई एंटी कैंसर एक्टिविटी नहीं है, बट इट इज प्रोड्यूसिंग सम टॉक्सिक इफेक्ट्स एट द लेवल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, प्रोड्यूसिंग इन्फ्लेम पर पकड़ गए, हेमोरेजिक सिस्टाइटिस इज प्रोड्यूस विद दिस एक्रोलेन. सो वन ऑफ द renowned toxic effects of cyclophosphamide is hemorrhagic cystitis, and which is due to the formation of acrolein. Second change is in the solubility. Now,
After metabolism through oxidation, reduction, hydrolysis, vast majority of the drugs they become ionized. जब वो ड्रग थी लिपिड सॉल्युबल थी, अनआयनाइज थी, तभी अब्जॉर्ब हुई थी, तभी अंदर आई थी. लेकिन अब आफ्टर मेटाबॉलिज्म रिएक्शन यही है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस. Majority of them they become ionized, that means water soluble. The water soluble means excretable, because we know that lipid soluble unionized are absorbable, while ionized and water soluble are excretable. इसी को हमने पीछे नाम लिया था, दिस इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन. तो इनकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है. बट स्टिल कुछ ऐसे रह जाते हैं अदर अनआयनाइज्ड स्टिल लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स present in the body okay, after metabolism they don't become ionized, still not biotransformed. ठीक है. इनकी तब होगी then when they will be conjugated. Conjugating moiety is always ionized. When that is that combined with the drug molecule or its metabolite, the whole molecule will become ionized and water soluble. In this way, biotransformation occur after. जिनकी रह गई है, जिनकी पहले नहीं हुई biotransformation, उनके थ्रू conjugation biotransformation हो जाए. So biotransformation is the reversible enzymatic changes in drug molecule to make them ionized, water soluble and thus create. Reversible क्यों कहा? कि ये conjugation है, ये जैसे ये irreversible reaction होते हैं ना केमिकल, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस. कंजुगेशन ऐसा नहीं होता है, रिवर्सिबल होता है. ये बाद में पढ़ेंगे कि अगर कंजुगेटेड पार्ट थ्रू बाइल एंटर इनटू द जीआईटी एंड रीच दैट पार्ट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, इन लार्ज इंटेस्टाइन द नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा प्रेजेंट is synthesizing so many things including some enzymes. So those enzymes will act on that conjugated molecule and will break down the again unconjugate. तो conjugated था ionized water soluble. जब unconjugated हो जाएगी again the molecule or the drug molecule will again become unionized. So that means lipid soluble, that means absorbable. तो large intestine से वो दोबारा absorb हो जाती है. हम इसको बाद में पढ़ेंगे. इसको कहते हैं एंटेरोहेपेटिक रिसाइकलिंग. लिवर से आया कंजुगेटेड पार्ट थ्रू बाइल जीआईटी में एंटर हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन में गया, वहाँ दोबारा अनकंजुगेटेड होके फिर एब्जॉर्ब हुआ थ्रू पर्सन, फिर लिवर में गया. एंटेरोहेपेटिक रिसाइकलिंग. अब ये देखिए कि हम ओरल देते हैं तो ड्रग मॉलिक्यूल आती है, अब थ्रू पर्सन के लिवर में जाते हैं, मेटल में होता है और सिस्टम सर्कुलेशन में जाते हैं. जब भी ओरल देंगे कुछ ना कुछ मेटाबॉलिज्म होगा और दोनों पार्ट मेटाबोलाइज्ड और अनमेटाबोलाइज्ड विल एंटर सिस्टम सर्कुलेशन. जब हम आईवी देंगे तो लिवर बाईपास हो गया डायरेक्टली 100%. जो अनमेटाबोलाइज्ड जैसा था वैसा का वैसा हमने एंटर कर दिया इंटू सिस्टमिक सर्कुलेशन. सो मेटाबोलाइज्ड और अनमेटाबोलाइज्ड ड्रग और प्रोडक्ट एंटर सिस्टम जब ओरली दी और आईवी दी तो एज सच एंटर हो गई. अब ओरल ड्रग जब हम देते हैं जीआईटी के थ्रू वो एब्जॉर्ब हुए. अब यहाँ पे याद रखिए कि एक कुछ ट्रांसपोर्ट होते हैं जैसे पी ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो बात का एब्जॉर्प्शन से रोकते हैं, वो किसी वजह से भी हो. अनएब्जॉर्ब पार्ट विल गो इनटू द फीसिस, उनकी एक्सक्रीशन थ्रू फीसिस हो जाएगी. जो एब्जॉर्ब पार्ट है वो आ जाएगा यहाँ पे इनटू द पोर्टल सर्कुलेशन. ठीक है, एब्जॉर्प्शन होके पोर्टल सर्कुलेशन में आ गई. वहाँ यहाँ भी फ्यू एंजाइम प्रेजेंट, साइटोक्रोम P450, ये मेटाबोलाइजिंग एंजाइम होते हैं, नाम सुना होगा साइटोक्रोम P450 एटसेट्रा. इवन जीआईटी वाल के अंदर भी मौजूद होते हैं. अब बड़ी एग्जाम्पल मौजूद है आपके पास वही पुरानी लिवोडोपा की. लिवोडोपा while being absorbed and passing through the membrane, the enzyme present in the wall of the GIT can start the metabolism of levodopa from here. डोपा डीकार्बोक्सिल एंजाइम. तो यहीं से मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है. अब उनका याद रखा, सारों का नहीं, जिनका है उनका सिर्फ एग्जांपल मैंने लिवोडोपा के लिए.
सो मेटाबॉलिज्म अकर, ठीक है। द रिमेनिंग पार्ट वो उनका मेटाबॉलिज्म होगा लिवर में जाकर। यहाँ भी मेजर पार्ट तो वही है, साइटोक्रोम P50 और बेशुमार एंजाइम होते हैं, लेकिन मेजर पार्ट इनका होता है। तो चुनाचे दे एंटर इनटू सिस्टम मेटाबोलाइज अनमेटाबोलाइज, जैसे हमने पहले देखा इनटू सिस्टम, प्रीवियस स्लाइड में यही देखा था कि मेटाबॉलिज्म हो गया, वो भी जो अनमेटाबोलाइज्ड पार्ट है वो भी ऑल विल एंटर इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन। और डायग्राम उसी तरह, ओरल डोज दी, अनअब्जॉर्ब फीसेस में चला गया, एब्जॉर्प्शन होते हुए, ठीक है। कुछ का मेटाबॉलिज्म हो गया इन दी वॉल ऑफ द जीआईटी, बाकी जिनकी एब्जॉर्प्शन होकर थ्रू पोर्टस के लिवर में चले गए, उनका मेटाबॉलिज्म यहाँ पे हो गया, ठीक है। जो अनमेटाबोलाइज्ड पार्ट होगा वो जो एंटर होगा सिस्टम में, उनको कहते हैं बायोअवेलेबिलिटी। सो बेसिकली बायोअवेलेबिलिटी इज, अब आगे आके डिफाइन करते हैं हम, ठीक है, कि बायोअवेलेबिलिटी इज दी, रिमेंबर फ्रैक्शन या अमाउंट ना याद रखना, फॉर गॉड सेक, इट्स नॉट द अमाउंट, not the concentration, it is the ratio or the fraction or percentage. Why? Because amount may vary, but ratio, fraction, percentage में इसी हैं। मैं यहीं पे एग्जांपल दे देता हूँ, फिर आगे डेफिनेशन मुकम्मल करेंगे। फॉर एग्जांपल ड्रग ए, वी हैव गिवन 5 मिलीग्राम ऑफ दैट, ठीक है, 3 मिलीग्राम ऑफ दैट 5 मिलीग्राम इज रीचिंग इनटू सिस्टम अनमेटाबोलाइज्ड, ठीक है। बाकी जो है 2% वो मेटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है। तो यूं समझिए कि 3 पार्ट उसका अनमेटाबोलाइज, ठीक है, 5 में से, या अगर आप परसेंटेज में देखेंगे, ठीक है, तो आप यूं कह सकेंगे कि 75% इज अनमेटाबोलाइज और 25% जो है वो मेटाबोलाइज्ड है। तो उसकी जो बायोअवेलेबिलिटी होगी वो 75% होगी। अब उस ड्रग को डबल कर लीजिए, 5 या 10 मिलीग्राम दे दें, ठीक है। आप देखेंगे इसका 6 पार्ट रहेगी, परसेंटेज वही होगी 75%, लेकिन क्वांटिटी बढ़ गई, पहले 3 थे अब 6 हो गए जो अनमेटाबोलाइज्ड गए। तो amount may vary, but the fraction, percentage, ratio will remain the same. So that is why when we define it, we use the word fraction or the percentage or the ratio of the administered dose of drug that reaches into systemic location in unchanged, unmetabolized form when given through any route. इसलिए कि ये मेटाबॉलिज्म जो होला मेनली थ्रू ओरल रूट हो रहा है, कि उसके रास्ते में लिवर आ रहा है सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले। अदरवाइज अभी पीछे हमने देखा इंट्रावेनस रोज, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, सबलिंगुअल, ट्रांसडर्मल, इन किसी के रास्ते में लिवर नहीं है, कोई मेटाबोलाइट नहीं आ रही, वो ऑलमोस्ट जो भी दाखिल होगी अनमेटाबोलाइज्ड दाखिल हो जाएगी। हाँ, वो लगा भाई कितनी दाखिल होती है, दैट में वेरी फ्रॉम टिश्यू टू टिश्यू, ठीक है। नाउ एक्सक्रीशन, इट इज रिमूवल ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। वो भले एक्टिव फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है, मेटाबोलाइज्ड हैं, अनमेटाबोलाइज्ड हैं, प्रो ड्रग जो भी है, when it has been removed from the body through the excretory organ, हमने कहा एक्सक्रीशन हो गई। So the drug after biotraction has become excretable। तो बायोट्रांसन ये भी है कि भी एक्सक्रीटेबल बनाने के लिए मेजर पार्ट तो पार्ट है पहले वाले का, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, जिनको हम फेज 1 भी कहते हैं। फेज 1 रिएक्शंस आर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। लेकिन अगर नहीं हुई तो बायोट्रांसफर्मेशन विल कंप्लीट द एक्सक्रीशन बिकॉज दे कन्वर्ट ऑल द रिमेनिंग मॉलिक्यूल, और जो भी हैं उनको आयनाइज, वाटर सॉल्युबल एंड एक्सक्रीटेबल। वगरना जो चले गए जीआईटी के अंदर ही रहे, सीक्रेट होने के बाद बाइल में, they will remain in intestine and will be excreted through feces as such। अब जब सिस्टम सर्कुलम चली गई, वहां से वो साइट ऑफ एक्शन में जाएगी, अपना एक्शन शो करेगी। So drugs which have not been eliminated, not yet inactivated by the liver, when enter into the circulation will reach to the site of action and will show this। तो चुनाचे जो एक्टिविटी है वो बायोअवेलेबिलिटी पे डिपेंड करती है कि कितनी
जो है अनमेटाबोलाइज वो मिल गए, उतना एक्शन मिल जाएगा। ठीक है।